10 safety rules. We conduct PBM before work, then we follow finger point confirmation during work, and all these things together form a work culture, what we called as a POSCO culture. And this safety culture is really very much helpful, which protect us and keep us safe and happy. The next thing I would like to discuss here about the next thing I would like to discuss here about the ESG. ESG is nothing but environment, social governance. This is theme by our Indian government, and in this theme, this is theme by our Indian government, and where Indian government gives a direction to operating companies that if you are operating for your profit, then in addition to that, your priority will be the safety of environment and safety of people working with your company. So this theme is given by Indian government recently. But what I know, and I would like to share here with you proudly, that POSCO is doing same thing since many years with the name POSCO Corporate Citizenship. The POSCO Corporate Citizenship is the same thing as the guidelines given by government as a ESG. POSCO is taking care of the employee and environment since last 10 years. The next topic I would like to discuss here is the mindset of Korean people. In 2015, I was in Korea for safety training, and I seen their Gyeongyang Steelwork, Pohang Steelwork, then POSCO's headquarters at Seoul. And what I observed there, the Korean people are very kind. They are passionate about work. They are hardworking, and the people give so much importance to health, and many things I observed there. And one most important thing that I like, with the help of technology, the Korean people have made their life very easy and happy. So I would like to share one thought here, that we all should follow this culture, Korean culture, where they give importance to work, discipline, work culture, safety life, and hard work. What I want to conclude here, our Indian culture is also very good. भारतीय संस्कृती आणि परंपरा जगामध्ये भारी आहे, खूप समृद्ध आहे, याच्यात काहीच डाऊट नाहीये. परंतु आपल्या संस्कृतीमध्ये आणि आपल्या परंपरेमध्ये एक दोन गोष्टी ऍड करावा असं माझं वैयक्तिक मत आहे. ते म्हणजे हेल्थ कॉन्शियसनेस आणि डिसिप्लिन इन वर्क. या दोन गोष्टी जर आपण आपल्या कामामध्ये ऍड केल्या तर ऑलरेडी आपलं परंपरा खूप समृद्ध आहेत आणि आणखीन त्या खूप समृद्ध होतील असं मला वाटतं. I would like to thank management for providing this very good opportunity and making awareness of safety among all the employees. I am so much happy to work together with the POSCO, Safe and Kind POSCO. Thank you very much. मी रोहन नरेंद्र देशमुख, ACL लाईन पोस्को महाराष्ट्र. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना सुरक्षा सप्ताहाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज दिनांक 12 मार्च 2024 म्हणजेच सुरक्षा साप्ताहिकाचा शेवटचा दिवस, आणि या निमित्तानेच आपण सर्वजण आज या ठिकाणी सुरक्षिततेबाबतची जनजागृती करण्यासाठी आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. सुरक्षा म्हटलं की तुम्हा आम्हा आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये येणारा पहिला विचार म्हणजे भारतीय सीमेवरती लढणारं आपलं भारतीय सैन्य, आणि त्यांच्याबद्दल आपल्या मनामध्ये सार्थ अभिमान आहे, आणि तो असायला देखील हवा. कारण या भूतलावरती देशाचं अस्तित्व जर काय टिकवायचं असेल तर ते आवश्यक घटक आहेत. मग सुरक्षा अंतर्गत महिला सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा व रस्ते वाहतूक सुरक्षा हे देखील आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा दिनाची सुरुवात ज्या उद्देशाने झाली, ज्या घटकासाठी झाली, तो घटक म्हणजे औद्योगिक सुरक्षा. औद्योगिक क्षेत्रात व औद्योगिक सुरक्षेमध्ये कामगार हा केंद्रबिंदू आहे. तसेच कोणत्याही उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कामगार हा केंद्रबिंदू आहे, आणि ह्याच कामगाराला कुठेतरी सुरक्षिततेची हमी मिळावी म्हणून 1948 साली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी कामगार नियमावली आपल्यासाठी आणली. होय प्रगतशील माझा भारत देश, होय प्रगतशील माझा भारत देश. औद्योगिक क्षेत्रात
तळागाळापासून ते उंच शिखरापर्यंत जाणारा माझा भारत देश, पण याच भारत देशामध्ये रोज प्रतिदिन किती इंडस्ट्रियल ऍक्सिडेंट्स होत आहेत याची तुम्हाला कल्पना आहे का? प्रतिदिन 3 मृत्यू व 4000 गंभीर अपघात आजही आपल्या देशात होत आहेत. म्हणजेच याच माझ्या प्रगतशील भारतामधील रोज 1 नव्हे 2 नव्हे 3 नव्हे तब्बल 4000हून अधिक कुटुंब हे कुठेतरी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावरती आपल्याला जाताना दिसत आहेत. खरंच आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत का? आपण या गोष्टीचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे असं मलाही वाटतं. आज या ठिकाणी आपण बसलो आहोत, पण तांत्रिक सर्वेनुसार पाहिलं तर 93% चुका ह्या मानवी चुकांमधून होतात. 93% अपघात हे मानवी चुकांमधून होतात, म्हणजे ज्याला आपण ह्युमन एरर्स म्हणतो. याचाच अर्थ तुम्हा आपल्या सगळ्यांना कुठेतरी सुरक्षिततेबाबतची जनजागृती व्हावी किंवा जागरूकता यावी, हे असं मला वाटतं. आज मला सार्थ अभिमान आहे की मी आज एका अशा ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत आहे की जिथे सुरक्षिततेला पहिलं प्राधान्य दिलं जातं आणि त्यानंतर प्रोडक्शन पाहिलं जातं. अनेक सेफ्टी सिस्टम्स तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या संरक्षणासाठी आपण इथे राबवतो. ज्याच्यामध्ये 10 सेफ्टी रूल्स आलं, ILS आलं, GIB आले, CCTV कॅमेरेज आले, ओव्हरसीज ऍक्सिडेंटल रिपोर्ट आले. खरं सांगायचं झालं तर ओव्हरसीज ऍक्सिडेंटल रिपोर्ट हे एक दैवी वरदान आहे. येस, overseas accidental reports is the God gift for us and is absolute God gift for us. का? कारण पोस्को ग्रुप मधील कोणत्याही कंपनीमध्ये किंवा पोस्को ग्रुपचे प्रत्येक कस्टमर, पोस्को ग्रुप सोबत टाईप असलेल्या प्रत्येक कंपनीमध्ये जिथे कुठेही अपघात होतो त्या अपघाताची माहिती आपल्याला या ठिकाणी या रिपोर्ट मधून मिळते. तो अपघात कसा झाला, कशामुळे झाला, त्याला कसं सॉल्व्ह केलं गेलं, कसं हँडल केलं गेलं याची माहिती या रिपोर्ट्स मार्फत आपल्याला मिळते. जेणेकरून तीच परिस्थिती जर का भविष्यात आपल्या कंपनीत आली, आपल्या प्लांटवरती आली, आपण जिथे काम करतो त्या ठिकाणी आली, तर त्या प्रॉब्लेमला कसं आपल्याला सामोरं जायचंय याची माहिती आपल्याला मिळते. खरंच हे एक दैवी वरदान आहे. GIB हाताच्या बोटांवरती मोजू शकतो इतक्याच कंपनीमध्ये राबवली जाणारी ही सिस्टम, जिथे फक्त पॅनलवरून नाही तर संपूर्ण सोर्सच्या मुळापासूनच त्याचा सिस्टम बंद केले जातो, त्याची सोर्स बंद केले जातात. याचाच अर्थ कोणताही अपघात आपण 99% त्याच ठिकाणी आपण स्टॉप करतो किंवा अवॉइड करतो. कॉस्ट सेव्हिंगचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता आपल्याला मुबलक प्रमाणामध्ये आपल्याला PPEs पुरवल्या जातात. 10 सेफ्टी रूल्सचं आपण काटेकोरपणे पालन करतो. पण ही सेफ्टी फक्त प्लांट मध्ये पाडून उपयोग आहे का? तर नाही. आज आपण पाहिलं तर रस्ते व वाहतूक सुरक्षा ही जी सुरक्षा आहे त्यामध्ये कित्येक अपघात वाढलेले आहेत, रस्त्यांवरती कितीतरी अपघात वाढलेले आहेत. म्हणून मला असं कुठेतरी वाटतं की ज्याप्रमाणे आपण इंटरलॉक्स आपल्या कंपनीमध्ये, आपण आपल्या प्लांटवरती, आपल्या सिस्टममध्ये जसे आपण राबवलेले आहे, त्याच प्रकारे आपल्या गाडीच्या वेगावर सुद्धा एक मनाचा इंटरलॉक लावण्याची या ठिकाणी आपल्याला गरज आहे असं मला वाटतं. शेवटी जाता जाता एवढंच म्हणेल, काय दिलं या पोस्कोने, काय दिलं या सुरक्षिततेने, तर इथे काम करणाऱ्या आपल्या प्रत्येक कामगाराच्या पत्नीला, प्रत्येक भावाला, प्रत्येक बहिणीला, प्रत्येक कामगाराच्या मुलाबाळांना विश्वास दिला आहे पोस्कोने की आज माझा कामावर गेलेला माणूस सुरक्षितपणे घरी परतणार आहे. हा विश्वास दिला आहे पोस्कोने, हा विश्वास दिला आहे पोस्कोच्या सेफ्टीने आणि हा विश्वास दिला आहे सुरक्षिततेने. धन्यवाद. सेफ्टी फर्स्ट. हेलो संजीव, हेलो कौन है? तेरा बाप बे। अरे भाई कैसे है भाई? एकदम मस्त बे। अरे भाई कैसा है? मस्त एकदम है। किधर कॉल नहीं कुछ नहीं? अरे क्या सर्किट, मैं ना अब एक नया काम शुरू केला भाई, तो थोड़ा मैं बिजी रहला भाई। ऐसा काम भाई मेरे को बता दो। अरे एकदम मस्त काम, सुरक्षागिरी का, समझा क्या? अरे भाई सुरक्षागिरी अभी ये क्या नया सीखेला भाई? अरे सर्किट ऐसा नहीं समझ सकता रे तू, उसके लिए तुमको मेरे पास आना पड़ेगा भाई। हाँ भाई फिर आता है ना मैं एकदम फटक से। हाँ तुमको मैं सिखाता सुरक्षागिरी क्या होता भाई। ठीक है भाई, अभी आते हैं 5 मिनट में। अरे भाई कैसा है भाई? अरे सर्किट कैसे तो? बस भाई एकदम। अरे बहुत दिन बाद मिला था भाई। हाँ क्या बाकी फिर क्या वो नया सीखना आप कुछ तो सुरक्षागिरी समझे ले आप उसको। हाँ सर्किट ऐसा नहीं करते रे, सुरक्षागिरी करना है ना तो अपने को प्लांट के अंदर जाना पड़ेगा भाई। प्लांट के अंदर सिखाएगा तुमको कैसा होता है सुरक्षागिरी, समझा क्या? ठीक है भाई फिर चलते हैं भाई। अरे ऐसा नहीं रे सर्किट,
अपन को प्लांट में जाने से पहले ना अपने को पीपी करना पड़ता, पीपी डालना पड़ता, समझा क्या भाई पीपी क्या मेरा यार? अरे पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, समझा क्या? अच्छा ऐसा रहता क्या? तो उसके लिए ना अपन ना सबसे पहले इधर आ, ये अपने हेलमेट डालते हैं सर, समझा क्या? ये तू हेलमेट पहले डाल, फिर गोगल डाल। अरे सर्किट ऐसा नहीं रे, ऐसा कैसा डाला तूने? इसको ऐसा डालने का, लेस लगाने का। अरे ऐसा रहता क्या? उसके बाद तुमको ना गोगल डालने का। ऐसा भाई कैसा दिखेगा? मैं तुमको दिखाता भाई, ऐसा गोगल डालने का, फिर ऐसा हेलमेट डालने का, समझा क्या? अच्छा ऐसा रहता क्या ये सब? हाँ ऐसा सही है भाई, फिर तो एकदम हीरोगिरी दिख रहा लो भाई। चलो भाई फिर चलते। भाई ये क्या नीचे हरियाली बिछा के रखे पूरी? अरे सर्किट इसको हराली नहीं दे बोलते, इसको अपन वॉकवे बोलते, वॉकवे इधर चलने का वॉकवे पे, और अपने को फिंगर पॉइंट कंफर्मेशन करने का, समझा क्या? ठीक है भाई। अरे भाई क्या मस्त है एकदम, ऊपर पूरा पाइपलाइन बिछा के रखा अरे है। सर्किट अपन ना बड़े कंपनी में काम करेला भाई, समझा क्या? तो अरे अपन वाह, सब कुछ इधर बड़ा बड़ा दिख रहा तुमको, समझा क्या? ठीक है भाई। और वॉकवे भी चलने का, इधर सुरक्षा के साथ करने का, समझा? ठीक है भाई। भाई ये क्या कर रहा है ऊपर? ए एड़े अबे नीचे उतर। अरे ए कौन है तू? इधर क्या करेगा तू? अबे भाई ने बोला नीचे उतरने का तो उतरने का ना। खामोश। ये तू ऊपर क्या करेगा? और ये क्या है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वराग कहते हैं। भाई रुके इसको रख के। अरे सर्किट ऐसा नहीं करने का रे भाई। ए विश्वनाथ, तूने अभी जो बड़े बड़े डायलॉग बोला, क्या जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। पर जो तू काम करेगा विश्वनाथ, ये हाइट वर्क पे तू काम करेगा था ना, इसके ऊपर से गिरा ना, उसे सर्वनाश कहते हैं। और जो तेरे बाद तेरे बीवी बच्चे को अनाथ कहते हैं, समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे इसको पहले जादू की झपकी देने का, फिर समझाने का, सुरक्षा से काम करने का, हार्नेस वेल पहनने का, उसके बाद काम करने का, समझेगा विश्वनाथ? समझ गए? ओके, तो अपना काम सुरक्षा से करो, समझा सर्किट? पहले सही देखा ना भाई। भाई, ऐसा करने का सुरक्षागिरी किसको बोलते हैं अपन? SAO, समझा क्या? SAO मतलब सेफ्टी एक ऑब्जर्वेशन, प्यार से समझाने का, जादू की झपकी देने का, फिर उसको काम पे लगाने का, समझा? भाई एकदम सही है भाई। ऐसा करते हैं अपन सुरक्षागिरी। अपन ना भी तो गुंडागिरी केला, गांधीगिरी किया, तो ये नया काम है ना सुरक्षागिरी, एकदम मस्त काम, राक्षिक काम अपने लिए, समझा क्या? मस्त है भाई एकदम। अरे अभी भाई चल तुमको आगे दिखाता कैसा होता है। वो सब ठीक है। और ये क्या करे अरे, भाई? ये कौन है भाई? ये मामू किधर काम करेगा तू इधर? और कौन है तू? पुष्पा, पुष्पराज। पुष्पा नाम सुनते फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। भाई इसको बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा भाई। अरे सर्किट ऐसा नहीं रे। ए पुष्पराज, तूने कौन सा काम करता भाई? पहले मुझे दिखा। अपना पेंटिंग का काम चल रहा है इधर। अच्छा, पेंटिंग का काम करेला तू पुष्पा? तो तूने हेलमेट सही से नहीं पहना रे, और ये क्या सेफ्टी शूज नहीं पहना, क्यों? सेफ्टी शूज का लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे अरे पुष्पा, देख देख पुष्पा, तू अभी जो काम करे ना, पेंटिंग मटेरियल पे फायर लग सकते, फायर क्या बोला पुष्पा? द फायर, फायर लग सकती इधर। तो तुमको ना सेफ्टी से काम करने का। और ये क्या देख सर्किट, ये अपना अपने वीडियो है को- रे। ये सिगरेट पीला बाबा। बनायो। ये प्लांट में सिगरेट नहीं चलता रे भाई। और वो पेंटिंग मटेरियल के साथ तूने कैसे किया? फायर लग सकता, तुमको प्रॉब्लम हो सकता, पूरी प्लांट में आग लग सकता, समझा क्या पुष्पा? तो सेफ्टी से काम करने का, शूज पहनने का, और शूज पहनने के लिए झुकना पड़ता।
और साथ में तूने अभी फेंक रहा था, तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला और इधर उधर थूकेगा साला। हाँ? ऐसा नहीं ना, ये करने का, सिगरेट फेंकने का, शूज पहनने का और फिर काम करने का, समझा? समझा कि नहीं? समझा। ऐसा काम करने का पुष्पा। देखा सर्किट? आज के लिए पुष्पा ये सब कुछ लेस वगैरह बांधेगा, पीपीस पहनेगा और सेफ्टी के लिए पुष्पा झुकेगा साला। ये बोलते इसको, समझा क्या? तो भाई थे, मैं रहता तो तेरे को ठोकी देता था। अरे सर्किट, ये अपना गुंडागिरी नहीं करने का भाई, इधर प्लांट है, प्लांट में सुरक्षागिरी करने का, प्यार से बोलने का, समझा? समझा कि नहीं? आके पूरा बदल गया भाई। अभी प्लांट में अपन कर लेगा ना, अभी तक देख अपन गुंडागिरी किया, फिर गांधीगिरी किया, अभी ये नया काम जो है ना, अपने को बड़ा मजा आएगा। बराबर है भाई, अपन भी पूरा अभी चेंज होने लगा इधर पे। मेरे को भी रख लो इधर काम पे भाई फिर। अरे मैं तेरे को अभी रखेगा। कौन है रे बाबा? ये कौन है रे भाई? ये कौन आया रे बाबा? टीवीएम बरो साइलो सेफ्टी ऑफिसर कौन है रे बाबा? ये कौन है तू? किधर आया? तू मेरे को नहीं पहचानता? कौन है भाई? तू मेरे को नहीं पहचानता? अरे मेरा नाम बाबूराव गणपतराव आपटे रे बाबा। अरे बाबूराव? कौन है तू बाबूराव? अरे सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला, सिक्योरिटी वाला, पूरा दुनिया मेरे को पहचानता है। राजा सागरे वाला पता ही गया। अरे बाबू भाई, बाबू भैया, ये तू काम कर ले भाई। हाथ में क्या है भाई? अरे खांसी की दवाई है रे बाबा। अच्छा, तेरे को खांसी नहीं की समझेगा। दवाई लेके प्लांट में आएगा बाबा। 1 मिनट में देखता अभी। ये सर्किट देख जरा, क्या है रे? भाई तो अपने वाले भाई। ऐसा नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं। अभी ना ये बाबू भैया ये लेके आया और तूने बोला मैं काम करने वाला है, ऐसा नहीं चलता रे भाई। प्लांट के अंदर ये नो अलाउ, समझा क्या? तो इसको लेने का नहीं और उसके बाद बाहर रखने का। ये क्या ना, तेरे लिए प्रॉब्लम, पूरी परिवार के लिए प्रॉब्लम। तूने तो मेरा धोती खोल दिया बे। भाई धोती नहीं, आंखें खोल दी आपकी। और साइन ले लो, टीवी पे जाती। अरे तो सेफ्टी ऑफिसर है ना, तो जल्दी जल्दी मेरे को साइन अरे कर बाबा। अरे बाबू भैया, ऐसा नहीं करने का। अभी प्लांट का रूल है, जल्दीबाजी नहीं करने का। डू नॉट हरी इन वर्क। क्या बोला? डू नॉट हरी इन वर्क। तो जल्दबाजी नहीं करने का ना, जल्दबाजी किया ना तो यमराज जल्दबाजी करेगा ले जाने को, समझा क्या? ऐसा नहीं करने का। प्यार से पहले जो अपने लेके आना डर रहा है उसको बाहर फेंकने का, फिर प्यार से काम करने का, उसके बाद देखने का, समझा रे भाई जादू? भाई सही है एकदम। ऐसा करने का। सुरक्षागिरी मतलब अपने सारे पंटर लोग है ना, उसको समझाने का कैसे काम करते, कैसा उसकी सेफ्टी देखते, समझा क्या? तो अपन अभी जो किया ना सेफ्टी एक ऑब्जर्वेशन, वो सारे को समझाने का। ये पुष्पा, ये बाबू भाई, ये इधर पुष्पा, बाबू भाई और विश्वनाथ, आओ इधर। सर्किट, अभी तुमको जो मैंने दिखाया ना सुरक्षागिरी क्या होता है, तुमको समझ में आया कि नहीं? मेरे को सब समझला अभी एकदम बाबू। सब समझा ना? सब मेरे तो को अभी समझा सबको एकदम। एक बार बताओ इसका कैसे करने का। पंटर लोग समझा ना? समझा। इसके बाद भाई ने बोला सब सुरक्षागिरी फॉलो करने का तो करने का। और भाईगिरी से ऊपर सुरक्षागिरी होती है, समझा ना? ओके। हे सर्किट, हाँ भाई। देखो बाबू दिखला भाई, बापू किधर है भाई? अरे इधर नहीं रे, फिर इधर दिखेला बाबा। हाँ मेरे को भी दिख रहे भाई। अरे इधर किधर दिखेला भाई? हाँ दिख रहे अरे बापू अपन इधर नहीं। हाँ दिख रहे भाई मेरे को। ये अपना बापू आएगा, बापू सर्किट। हाँ। इधर आएगा बापू। हाँ दिखा दिखा। ये बापू इधर आएगा। खुश हो ही गया था। राज, तुम्हारी सुरक्षागिरी देखकर मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है। ये बापू, तूने मेरा दिल गार्डन कर दिया बापू, ऐसा बोल के। ये सर्किट, अभी सबको सिखाया ना सुरक्षागिरी, तो सभी जितने यहाँ बैठे लोग हैं ना, उनको अपने सॉन्ग के माध्यम से सुरक्षा के बारे में बताने का, समझा क्या? इस अच्छे मौके पे अपन को एक मस्त सॉन्ग याद आने लगा भाई। बोलता है फिर तू गा सकता है ना? हाँ, फिर गा के भाई। बता। ए मेरे को फॉलो करो रे। आओ भाई सेफ्टी पोस्को के हम सिखाए रूल, 10 सेफ्टी पोस्को की नहीं तू जाना भूल। काम करने से पहले चेक करना टूल, फिंगर पॉइंट कंफर्मेशन नहीं तू जाना भूल।
ईवीएम परमिट और जीआईबी फॉलो करें, ईवीएम परमिट और जीआईबी फॉलो करें। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट।